Hello, dear students. Welcome to DOE online classes Learn from Home series. In today's session, which is for class 12, we will discuss the basics of three-dimensional geometry. And this session is prepared by and delivered by Team Mathematics DOE. Prevention is better than the cure. COVID appropriate behaviors. Wash your hand frequently and thoroughly with soap and water. 2 गज की दूरी है सबके लिए जरूरी और wear homemade reusable face cover at all the times. We request you to be a volunteer and make people aware to turn off their vehicle on red light. A valuable lesson that a traffic signal teaches us. Every problem is like a red signal. If you wait for some time, it will turn into green. You have to follow the guidelines. If you are seeing this video and having some problem, then kindly refresh your screen, watch the class in the full screen and enlarge the screen using square box at the right bottom corner of the video. And if you have any particular doubt, you can mail us or you can write that problem in the comment box and we will revert you accordingly. So let's start the session. This is the first topic of chapter number 11, the basic three-dimensional geometry. The session is presented by myself, Shashank Vora. I am from RPVB, Harinagar. You know me as SHA whole square NK Vora sir. And these are my team members. Vidya Sagar Malik sir from Core Academic Unit. Anju Bhatia ma'am from SCAV Indrapuri. Dr. DN Sharma sir from SOE Rohini. Gajendra Yadav sir from RPV Dwarka. Madhurika ma'am from SOE Dwarka. Pradeep Kumar sir from SOE Dwarka. Suman Arora ma'am from RPV Paschim Vihar. Sweetie ma'am from B4 Paschim Vihar. And Tarun Makkar sir from RPV Gandhinagar. These are our team members. अब तक तो आप इन सबसे familiar होंगे. Start करते हैं session. Before starting the session, let's acknowledgement. Let us discuss the acknowledgement. The following resources have been used only for the education and learning purpose. We have used NCERT maths textbooks and Google Images, and these images are used for the knowledge enhancement of the student. No commercial use has been done. If any discrepancy or inadvertent error is noted in this presentation, it would be rectified accordingly. Let's recap the basic concepts. These are the concepts from class 11th. Coordinate plane. हमने पढ़ा था coordinate plane क्या होते हैं. हमारे पास जैसे 2-dimensional geometry में x axis and y axis होता है, उसी तरह से 3-dimensional geometry में हमने पढ़ा था 3 axis होते हैं, x axis, y axis, z axis, right? xy plane अगर x axis और y axis मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपका xy plane. जैसे आप देख रहे हैं ये हमने 11th क्लास में किया हुआ है, तो एक बार इसको देखते हैं. अगर x axis and y axis combined together they form xy plane, right? ये हमने पढ़ा हुआ है. Similarly, if y axis, ये y axis और z axis को फॉर्म करेंगे तो ये जो वॉल बनती है, this is called yz plane. These basics are very much required for understanding the basic concept of class 12th. xz plane कैसे बनता है बच्चे? x axis और z axis को combine करते हैं तो हमारा बनता था xz plane. ये हम पढ़ चुके हैं अपनी 11th क्लास में. और जब हम इन प्लेन्स को बनाते हैं तो पूरा जो स्पेस है that is divided into 8 octants. ये हमने पढ़ा था. That is what is called octant. Octa means 8. So these 3 coordinate plane divide the space into 8 parts and these parts are known as octants. फर्स्ट ऑक्टेंट बेसिकली हम मान के चलते हैं कि जो पॉजिटिव एक्सिस होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, उन्हीं से मिलता है फर्स्ट ऑक्टेंट. ये सब हम बेसिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं. इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. मान लेते हैं 8 ऑक्टेंट कैसे होंगे, क्योंकि 3D में हमें ना विजुलाइज करना पड़ता है, हम उसको प्लेन पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो एक बार विजुलाइज करते हैं. मान लेते हैं ये आपका एक रूम है, आप फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो हम इसमें विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे 7 अदर रूम्स कौन से हो सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखिए बच्चे कि यहाँ पे जैसे ये एक रूम है तो इस एक रूम इसके राइट वॉल के साथ टच हो रहा होगा, एक रूम इसके लेफ्ट वॉल पे टच हो रहा होगा और एक इन दोनों के रूम के ऑपोजिट साइड होगा, राइट? अगर मैं टॉप व्यू देखूं
अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो अगर मैं इस रूम में हूँ तो एक रूम यहाँ होगा, एक रूम यहाँ होगा और एक ये रूम होगा। और मान लेते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ये जो 4 रूम ऊपर है ऐसे ही 4 रूम नीचे होंगे, तब ये बनते हैं 8 पार्ट्स, दैट इज व्हाट दे आर कॉल्ड ऑक्टेंट्स। तो हमने लिखा है देयर आर 3 ऑन द सेम फ्लोर, अदर 3 मतलब 3 एक पे तो हम हैं और इन इसके अलावा 3 और होंगे और ऐसे ही 4 फ्लोर नीचे होंगे। एंड दे आर कनेक्टेड बाय कॉमन पॉइंट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, ओ। हमने ये 11th क्लास में पढ़ा था कि जो 8 ऑक्टेंट्स होते हैं हम उनको जनरली डिनोट करते हैं एक्स ओ वाई जेड, एक्स डैश ओ वाई जेड, डैश मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर एक्स डैश ओ वाई डैश जेड मींस एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, और इस तरह से हम इनको नाम देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने रिवाइज किया था। अब इसके लिए आपने ना एक टेबल याद की थी अगर ऑक्टेंट्स की बात करें, बट हम टेबल से नहीं करेंगे, हम इसको बेसिक से समझते हैं और इस पे बेस पे 11th क्लास में हमने क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, एक बार 11th क्लास की कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए एक बार एक क्वेश्चन इस तरह से हम करके देखते हैं कि ये सारी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि नहीं है। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम ऑक्टेंट के लिए वो टेबल नहीं याद रखेंगे। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आपने की भी होगी। तो हम क्या करेंगे, ऑक्टेंट के सिंबल याद रखने के लिए कि भी कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा पॉइंट, हम क्वाड्रेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लेते हैं बच्चे यहाँ पे कोई एक आर पॉइंट है, -2, -3 और 4, मान लेते हैं ये पॉइंट है। तो आप बात करो एक्स और वाई की, आप देखोगे अगर ये एक्स वाई पॉइंट होते तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में कहाँ लाई करते, तो आप कहोगे कि एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता। तो अगर ये 2D में होती, अब इसके बाद आओ Z पे, अगर Z पॉजिटिव है तो ये ऑक्टेंट भी थर्ड ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल सेम साइन ऑक्टेंट में होते हैं, उनमें Z पॉजिटिव होता है और अगर Z नेगेटिव हो जाता है तो हम 4 आगे चले जाते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये यहाँ पे होता -2, -3, -4, तो हम कहते हैं कि -2 और -4 तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, बट Z नेगेटिव है तो इसका मतलब वो उसी के नीचे रूम में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप उसमें 4 ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7th। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो क्या लॉजिक समझा हमने कि हम क्वाड्रेंट की तरह ही आइडेंटिफाई करेंगे, अगर Z पॉजिटिव है तो वही आंसर लिख देंगे, बट अगर Z नेगेटिव है तो उसमें 4 ऐड कर देंगे। देखो जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 1 -2 n -3, और आपसे पूछा गया बताओ ये कौन से ऑक्टेंट में है, तो आपको कोई टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप पहले x और y देखो, यहाँ देख रहे हैं x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये 4 क्वाड्रेंट होना चाहिए था। बट अगर z पॉजिटिव है तो आंसर फोर्थ ऑक्टेंट ही होगा, अगर z नेगेटिव है तो उस 4 में 4 और ऐड कर देंगे, तो 4 और 4 हो गया 8। तो इसका मतलब है ये पॉइंट हमारा लाई करेगा 8th ऑक्टेंट में। इस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ मैंने कुछ ए से लेके जी तक कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं और इनमें से कोई भी पार्ट्स बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जरा। मान लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, p -3 -4 -5, ये कौन से ऑक्टेंट में आ रहा है। तो कैसे करेंगे बच्चे, हम कहेंगे x नेगेटिव है, x नेगेटिव है ये रहा, y नेगेटिव है ये रहा, तो ये तो थर्ड होना चाहिए। बट अगर z नेगेटिव है तो थर्ड में हम 5 उसको ऐड कर देंगे 4 को, तो यानी 7th ऑक्टेंट में हमारा आंसर आई करेगा। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहला बताया कि कौन सा ऑक्टेंट होगा, ये 7th ऑक्टेंट। क्लियर है, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव 5 होता तो फिर हम कहते हैं हमारा आंसर आता थर्ड ऑक्टेंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। इस x एक्सिस की जो है डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट की P की x एक्सिस की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको आप वैसे जनरलाइज भी कर देंगे, बट पहले हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है P को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो जब आप इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालने की बात करोगे x एक्सिस से, तो इसका मतलब है हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हम x एक्सिस पे ये Q पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो Q पॉइंट होगा इस पे y और z जीरो होगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था x एक्सिस पे y और z कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा जो यहाँ x कोऑर्डिनेट है वही होगा, यानी -3
-4 और -5। तो ये तो P पॉइंट है। तो अब जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो x यहाँ है -3 वही x यहाँ रहेगा -3। तो अब मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में डिस्टेंस जब निकालेंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा -3 + 3 का होल स्क्वायर यानी 0, -4 -0 का स्क्वायर यानी 16 और -5 -0 यानी 25। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गई रूट में 41 यूनिट। ये हमने इस तरह से किया। अदरवाइज मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप समझा, ठीक है। ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया। अब अगर हमें कोई जनरल कोई मेथड ढूंढना हो जिससे हम फटाफट आंसर निकाल सके तो एक मेथड देखते हैं बच्चे कि अगर आपसे बोला जाए कि ना एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस निकालो एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट को इग्नोर कर देंगे और हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी √y² + z²। ठीक है, ये होगी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस आएगी x² + z²। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को स्किप कर देंगे और मैंने रीजन बताया क्यों करेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने इसको सेटिस्फाई करके प्रूव करके बताया। अगर मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस z एक्सिस से निकालनी है तो क्या होगी, तो हम कहेंगे z एक्सिस को इग्नोर कर देंगे और हमारा आंसर आएगा x² + y²। तो ये अगर मैंने ट्रिक याद रख ली तो हम फटाफट आंसर इसका बता सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस को इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √16 + 25 यानी √41 हमारा आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए √41 यूनिट्स। यूनिट्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है सेंटीमीटर में मीटर में, तो वट एवर द यूनिट इज देयर दैट विल बी द डिस्टेंस। अगले पे चलते हैं। अब y एक्सिस से डिस्टेंस हमें निकालनी है तो हम y एक्सिस को इग्नोर कर देंगे। हमारा आंसर आएगा √3 का स्क्वायर √9 और √25। 9 और 25 हो गए 34। तो √34 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। क्लियर है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस। अब z एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, z कोऑर्डिनेट को इग्नोर कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा -3 का स्क्वायर यानी 9 + 16। कितना आंसर आएगा बच्चे, √25। और √25 को तो फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम z एक्सिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड्स में कई बार ये पूछा गया है तो इसका कोई एक पार्ट आ सकता है। तो इसको अच्छी तरह कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। इवन दो ये 11th का कंसेप्ट है बट क्योंकि 12th क्लास में बेसिक हमें समझने के लिए ये रिक्वायर्ड होगा तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं एक्स वाई प्लेन से कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। अभी हमने एक्सिस से की थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की। तो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर आप उसके अकॉर्डिंग बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मान लेते हैं बेटा ये पॉइंट है मेरे पास P और P पॉइंट क्या है, -3, -4 और -5। ठीक है। और मुझे जो डिस्टेंस निकालनी है इसकी निकालनी है एक्स वाई प्लेन पे। तो एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, एक्स वाई प्लेन पे हमारा z कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा -3, x सेम रहेगा, सिर्फ हाइट तो वेरी करी बस। तो ये आ गया मेरे पास ये, और y z हो गया 0। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले में दिस माइनस दिस का स्क्वायर हो जाएगा 0, दिस माइनस दिस का जो डिस्टेंस हो जाएगा 0 और आपका आंसर आएगा 5, है ना, क्योंकि √25। बट ये तो वो हमने ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझा। अदरवाइज आप एक लॉजिक भी समझ सकते हो कि जब भी कोई पॉइंट बोला जाता है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे जो z कोऑर्डिनेट होता है, z कोऑर्डिनेट, उस z कोऑर्डिनेट के मॉडुलस को हम कहते हैं कि ये P पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे है एक्स वाई प्लेन से। और अगर y कोऑर्डिनेट हो तो y कोऑर्डिनेट का मॉड जब हम लेंगे तो ये डिनोट करेगा P की डिस्टेंस एक्स जेड प्लेन से। और अगर x कोऑर्डिनेट का मॉड ले लें तो ये डिनोट करेगा कि P पॉइंट की डिस्टेंस वाई जेड प्लेन से। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा मॉड क्यों लगाया है। मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकते हैं और अगर ये नेगेटिव हो गए तो डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगी। तो हम कहेंगे डिस्टेंस तो नेगेटिव होती नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट होगा उसका मॉडुलस लगा देंगे तो वो जो कोऑर्डिनेट आएगा, वो जो वैल्यू आएगी
दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, जेड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस है, यानी एक्स जेड नहीं आएगा। वाई की बात करेंगे तो एक्स जेड प्लेन से बात करेंगे, डिस्टेंस होगी। और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स नहीं आएगा, ये वाई जेड डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, बहुत इजी है याद रखना। तो हमने क्या किया देखो, हमने बोला कि डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट एक्स वाई प्लेन से चाहिए, तो जेड कोऑर्डिनेट दिखा सीधा सीधा डायरेक्ट। जेड कोऑर्डिनेट क्या है, -5, तो -5 का मॉड आ गया 5 यूनिट। अब वाई जेड प्लेन से चाहिए, तो वाई जेड प्लेन के लिए क्या करोगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट पे जाओगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 था, -3 का मॉड ले लिया, तो 3 यूनिट आंसर आ गया। ऐसे ही अगर आपकी डिस्टेंस एक्स जेड प्लेन से पूछी जाती, तो एक्स जेड प्लेन के लिए क्या करोगे, वाई पे जाओगे। वाई कितना है, -4, उसका मॉड ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 यूनिट। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हमने क्या सीख लिया, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से, जेड एक्स प्लेन से, और हमने ना इसकी फोटो, इसके परपेंडिकुलर हमने बेसिक मेथड भी सीखा कि कैसे आई थी ये। तो हमें फॉर्मूला भी पता है और बेसिक कंसेप्ट भी पता है। और प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते रहेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं ऐसी। एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लिया मैंने, कि हमें क्या करना है यहाँ पे, इस पॉइंट की पहले बताना है कि कौन से ऑक्टेंट में है। तो कैसे बनाओगे बच्चे, अब आपको तो समझ आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। पहले हमें बताना है कि किस ऑक्टेंट में आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे -5 का, x -5 है तो y पॉजिटिव है, तो ये तो हमारे पास सेकंड बात हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, z पे जाएंगे, अगर z पॉजिटिव होता है तो कह देंगे सेकंड ऑक्टेंट ही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, z नेगेटिव है, तो हम उस सेकंड में 4 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारे पास हो जाएगा ये 6th ऑक्टेंट। तो हम कहेंगे इसका आंसर आएगा, क्या होना चाहिए, 6th ऑक्टेंट। तो ये पॉइंट लाई करेगा 6th ऑक्टेंट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, कि हमें पी की इमेज बतानी है, क्या होगी, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर की तरह मान लूं, मान लेते हैं ये मिरर है बेटा, मैं ना इसको ऐसे समझाता हूँ कि मान लेते हैं पी पॉइंट कोई भी है, ए बी सी, एक जनरल पॉइंट लेके चलते हैं, और मुझे इसकी इमेज चाहिए एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा, तो एक्स एक्सिस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, और मुझे यहाँ पे मिरर चाहिए, यहाँ पे ये इमेज क्या होगी। तो पहले क्यू की बात करते हैं, तो क्यू पे क्या होगा, क्यू पे क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, और वाई और जेड जीरो हो जाएंगे। अब हमने ना फिजिक्स में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये जो आर कोऑर्डिनेट होगा, जो इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट होगा, उसकी डिस्टेंस क्यू से और पी की डिस्टेंस क्यू से बराबर रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे या मिड पॉइंट की बात करेंगे कि पी आर का मिड पॉइंट क्यू है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, और यहाँ पे जीरो होने के लिए बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी इसकी इमेज एक्स एक्सिस पे आएगी ये। तो इतना कुछ हमने तो बेसिक समझ लिया। इसको याद कैसे रख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जब हम इमेज निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई और जेड के सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो अगर यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि इस पॉइंट की आप इमेज निकालिए, क्या होगी, तो आप कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, -5 सेम रहा, ठीक है, वाई और जेड के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 12 का बन गया -12, -13 का बन गया 13। तो इस तरह से हम इमेज कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है इमेज वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस के लिए क्या पैटर्न होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे। यानी अब आप आंसर गेस कर सकते हैं क्या होगा, बल्कि गेस क्यों कहेंगे, हम इसको कहेंगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 5, और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो ये +12 होगा, और z कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। तो इट शुड बी 5, बिकॉज x कोऑर्डिनेट का सिंबल चेंज होगा, y सेम रहेगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा -13 में 13। अब बात करते हैं z एक्सिस की। z एक्सिस पे क्या होगा, z एक्सिस पे z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, और x और y के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, -5 बिकम +5, 12 बिकम -12, -13 रिमेन एज इट इज। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स की इमेज भी निकाल सकते हैं, इन पॉइंट के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, और इन पॉइंट की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कहां से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से, और जेड एक्स प्लेन।
अब बिल्कुल सेम लॉजिक से चलते हैं बच्चे कि हम एक्स वाई प्लेन से बात करते हैं कि इसके इमेज कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फिर से सीखते हैं क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ पी जो है एबीसी, और मैंने ना यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर खींचा, तो ये फुट कितना होगा। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि जब हम वाई जेड प्लेन पे जाएंगे तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स और वाई सेम रहेंगे। और जब हम इमेज पे जाएंगे तो फिर से वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये सेम रहेगा, ए और z कोऑर्डिनेट माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट निकालने के लिए हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो मिड पॉइंट क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट साइन कर देंगे। अगर मैं इस अप्रोच का लगाऊं तो क्या आंसर आना चाहिए मेरा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट सेम, और z का हम साइन चेंज कर देंगे। आई होप आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। वाई जेड प्लेन पे चाहिए तो वाई जेड प्लेन पे क्या होगा, y और z सेम रहेंगे, इसका मतलब y सेम रहा, z सेम रहा, और x कोऑर्डिनेट का साइन आपने चेंज कर दिया। zx की बात करते हैं तो zx पे क्या होगा, x और z का साइन सेम रहेगा और y का साइन चेंज हो जाएगा। तो x का साइन सेम रहा -5, z का साइन सेम रहा -13, और y का साइन चेंज हो गया। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप इस कंसेप्ट को, तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें अपने डाउट्स मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये तो हो गया अभी तक का बेसिक पार्ट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसको हमने 12th में करेक्ट कर दिया कि पॉइंट 3D में क्या रिप्रेजेंट करता है और कैसे हम उनसे डील करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस पे। वेक्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, तो हम उसी कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं जरा। ये मान लेते हैं बच्चे कि क्या है, कोई एक डायरेक्टेड लाइन है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुई है और किसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगी। मान लेते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो है, ये वाली लाइन, पूरी लाइन एक्स एक्सिस, ये लाइन पूरी एक्स एक्सिस के साथ बना रही है अल्फा एंगल। ठीक है, ये बना लाइन बना रही है वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल, और ये लाइन गाम जेड एक्सिस के साथ बना रही है गामा एंगल। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, तो हमने मान लिया कि दिस लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन these angle are called directional angles, direction angles, right? और इन एंगल के कॉस को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी एंगल वो बनाएगी, अगर मान लेते हैं वो बना रही है एंगल 60, 90 और 45 कह सकते हैं, या कोई भी एंगल बना रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उन एंगल के कॉस को हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है कि क्या ये लाइन 60, 90, 45 बना सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या समझा हमने कि इफ अ डायरेक्टेड लाइन इज मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन दोस एंगल आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, और उन एंगल के कॉस को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है सोचने वाला कि इसको कॉस ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी मैं इसमें डील बताऊंगा, क्योंकि जब भी हम इसमें कुछ जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसमें हम कॉस डायरेक्टली बता पाते हैं, बिना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाले बिना ही हम कॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमें लेंथ पता होती है और बेस हम निकाल लेते हैं इजीली। मैं अभी आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आगे कि हम कॉस ही क्यों निकालते हैं। ठीक है, चलते हैं इस पे थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं जरा। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं एक बार बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि अगर कोई लाइन एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा, तो अगर मैं उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, मतलब लाइन अगर अपवर्ड जाने के बजाय डाउनवर्ड आ गई या उल्टा हो गया, उसको रिवर्स कर दिया, तो उसकी जो डायरेक्शन के जो एंगल होंगे, पहले जो अल्फा बीटा गामा बनते थे वो बन जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। इसका मतलब है डायरेक्शन को साइन रिवर्स हो जाएंगे, साइन यानी पहले अगर वो मान लेते हैं हमारे पास आ रहे थे 1/2, 1/2 और 0, या 1/2, 1/2 और 1/√2 आ रहे थे, तो वो नेगेटिव हो जाएंगे सारे। ठीक है, इसलिए लाइंस की डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, वी मस्ट टेक गिवन लाइन एज अ डायरेक्टर लाइन। डायरेक्टर मतलब उसमें एक लाइन की डायरेक्शन देनी जरूरी है, और इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिनोट करते हैं जनरली एल, एम और एन से। ठीक है,
और अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये हमेशा लाइन ओरिजिन से पास करेगी? ऑब्वियसली जरूरी थोड़ी है लाइन ओरिजिन से पास करे। बट अगर ओरिजिन से पास नहीं करेगी तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, उसकी एक पैरेलल लाइन हम बना देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन ना ऐसे चलेगी। मान लेते हैं लाइन ना ओरिजिन से ना जाके ऐसे निकल रही है। तो हम उसके पैरेलल एक लाइन बना देंगे, पैरेलल खींचते-खींचते लाएँगे और एक लाइन उसके पैरेलल बना देंगे जो ओरिजिन से जा रही है। तो जो डायरेक्शन कोसाइन इसके होंगे, वो इसके होंगे। जैसे हम 2D में पढ़ते थे, टू पैरेलल लाइन्स हैविंग द सेम स्लोप, उसी के कांसेप्ट पे हम ये पढ़ सकते हैं और हमने पढ़ा भी है कि कोलिनियर जो लाइन्स होती हैं उनके डीसी डी आर प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और सेम डीसी ले लेंगे। ठीक है, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन कोसाइन्स। अब इसको हम समझते हैं कि हम जो डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, अगर एंगल ना दिए हों तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका कांसेप्ट सीखते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन का कांसेप्ट क्या है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो वेक्टर में हमने पढ़ा कि किसी वेक्टर को अगर मैं मान लेते हैं ये पी पॉइंट है मेरे पास एक्स वाई जेड, मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये वेक्टर ना मान लेते हैं यहीं तक का है, मान लेते हैं ये वेक्टर यहीं तक है, ओपी वेक्टर। तो ओ से पी तक गया है, तो इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? x माइनस जीरो एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप। तो ये जो वेक्टर आता है, इसकी जो ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट और kth कंपोनेंट होता है, इन ये जो कंपोनेंट आया है इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये तो आपको पता ही है और इसलिए मैंने दोबारा भी लिख दिया कि दीज आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मान लेते हैं ये ना मैं इसको ना 2D की तरह समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ये है हमारे पास लाइन थी, ठीक है, ये लाइन थी और ये मेरे पास पॉइंट था। पॉइंट क्या था? एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरे पास है और मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है। तो जब मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही है? ये अल्फा, ये एंगल मेरे पास अल्फा है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास x, क्योंकि x एक्सिस पे ये डिस्टेंस x डिनोट करेगी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x 0 0। तो इस वाले कंसेप्ट डायग्राम से अगर मैं देखूं मेरे पास इमीडिएट क्या मिल रहा है, मेरे पास इमीडिएट इन्फॉर्मेशन क्या है? मेरे पास x है यानी बेस है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज है क्योंकि मैं इस वेक्टर की लेंथ निकाल सकता हूँ। कैसे? मैग्नीट्यूड से। हमने वेक्टर में पढ़ा था कि हम किसी भी वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अगर हमें वेक्टर पता हो। तो इमीडिएट मुझे क्या पता है? बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, और बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन सी चीज रिलेट करती है? कॉस थीटा। दैट इज व्हाई हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं डायरेक्ट। तो इसको इसमें डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? x अपॉन इस वेक्टर की लेंथ OP। तभी हमने ऐसा लिखा है। अब अगर ये दोबारा डायग्राम ना बना के मैं कहूँ अगर ये y एक्सिस होता, अगर ये y एक्सिस होता तो ये डिस्टेंस क्या डिनोट करती? y, और ये एंगल क्या होता? ये एंगल होता बीटा, है ना। अगर आप कहते हैं मैं दोबारा समझा देता हूँ क्यों, क्योंकि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास y एक्सिस है और मैंने इसे लाइन बनाई, तो जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे x और z 0 देंगे और ये कोऑर्डिनेट y होगा, तो इसका मतलब ये मेरे पास लेंथ y आ जाएगी, बल्कि मैं मैग्नीट्यूड y भी कह सकता हूँ, ठीक है। बट मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ इसलिए x और z पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ये मेरे पास बीटा एंगल है। कॉस बीटा क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? इस वेक्टर की लेंथ यानी OP। और ऐसे ही अगर ये z एक्सिस होता तो क्या होता? z अपॉन OP, और ये कॉस गामा बन जाता है। तो हमने क्या निकाला? कॉस अल्फा निकाल लिया, x अपॉन OP, बीटा कॉस बीटा निकाल लिया y अपॉन OP, और कॉस गामा निकाल लिया z अपॉन OP, ठीक है। तो ये क्या आ गए? अभी हमने क्या पढ़ा था? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो यानी हमने क्या सीखा यहाँ से कि एक्स वाई जेड तो डायरेक्शन रेशियोज थे। इसका मतलब है कि अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज को उनकी वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ साथ साथ ही, एक वेक्टर है मेरे पास 2y 2j और k, ठीक है। तो इसके dr क्या होंगे? तो आपको डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 2 to 1, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 2 to 1, क्योंकि एक्स वाई जेड यानी आई जे के कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम? डायरेक्शन रेशियोज। इस वेक्टर की लेंथ कितनी आ रही है? आपको अगर लेंथ आ रही है इसकी, डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट में, तो वेक्टर की लेंथ आ जाती है। कितनी आ गई इसकी वेक्टर की लेंथ? 3। तो अगर मैं इन डायरेक्शन रेशियोज को इसकी लेंथ 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया 2/3, 2/3 ऑफ
1/3। तो इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज को डील कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हमारे पास कि अभी मैंने जो था कॉस अल्फा निकाला था x अपॉन ओपी, तो जो मैं अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तीनों को, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर रहा हूँ कि एलसीएम सेम आ गया। तो एलसीएम को मैंने ले लिया है मैंने ओपी स्क्वायर, तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओपी क्या होता है इस वेक्टर की लेंथ, वो क्या होती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो हम रूट से स्क्वायर कट कर देंगे तो हम देखेंगे ऊपर नीचे सेम आ गया टर्म, ये दोनों तो सेम टर्म है, तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आई जो आपको समझनी भी बहुत जरूरी है कि अभी तो हमने सीखा था कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हमें एंगल पता हो कि भी कितने कितने एंगल बना रही है ये, या फिर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो उससे हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं वेक्टर की लेंथ से डिवाइड करके। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई जो आपको याद भी रखनी है कि सारे डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास हमेशा 1 मिलेगा। तो अगर आपको याद होगा मैंने अभी आपसे बात भी की थी कि क्या कोई लाइन 60 डिग्री, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई लाइन 90, 60 और 45 डिग्री बना सकती है, तो आप चेक करोगे कि cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 45 1 आ रहा है। अगर आ रहा है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें ये वाली याद रखनी है। अब इसके बेस पे बेटा तीन अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उन तीनों को क्लब कर दिया। ठीक है, तीन अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उनको तीन अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि क्या क्या पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एक बार समझते हैं। इफ अ लाइन मेक्स अल्फा, बीटा एंड गामा with coordinate axis, then find the value of cos square alpha, cos square beta and cos square gamma। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कहेंगे इसका तो आंसर हमें डायरेक्ट पता है, क्या होता है इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ सकते हैं इसका बी पार्ट कि आप बताओ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। तो मैंने साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब मैं क्या नोट कर रहा हूँ 1 1 और 1 तो बन गया 3, और इनको मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस पार्ट का आंसर 2 आ सकता है। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि इसका तीसरा पार्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे, हमने ना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos 2 थीटा का, क्या होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें भी लगा देंगे। अब आप नोट करो इसमें से इसमें से और इसमें से तो 2 कॉमन आ सकता है, हमने कॉमन ले लिया और 1 1 और 1 को ऐड किया तो 3 बन गया। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमने पढ़ा है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 1 होता है, तो हमने लिख दिया 1। तो 2 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी आपसे तीन चीजें पूछ सकते हैं जो हमने डिस्कस की। ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है। अब चलते हैं, हमें एक लाइन के ना एंगल दे दिए गए कि वो लाइन इतना इतना एंगल बना रही है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मींस ऑर्डर में है। इसका मतलब है वो 60 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 45 बना रही है वाई एक्सिस के साथ, और 60 डिग्री बना रही है जेड एक्सिस के साथ। तो वो पूछ रहा है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ क्या होंगे। ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो हम कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अभी हमने पढ़ा था कि इन एंगल्स के कॉस को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने क्या किया 60 डिग्री अल्फा था, बीटा 45 था, गामा 60 था, तो इनके कॉस ले लिए। कॉस 60 हाफ हो गया, कॉस 45 1/√2 हो गया, और कॉस 60 भी हाफ हो गया। तो मेरे पास ये क्या आ गए, ये आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे हाफ 1/√2 एंड हाफ। और इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन को निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये आप बहुत इजीली आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1 का ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम है। अब मुझे एंगल दे रखे हैं 90, 135 और 45। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, इन एंगल के कॉस को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने ले लिया cos 90 0, cos 135 क्या हो जाएगा, cos 135 कैसे निकालेंगे, cos 180 माइनस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos 45 हो जाएगा, यानी मेरे पास आंसर आ जाएगा -1/√2। और फिर आ जाएगा cos 45 यानी cos 1/√2 होता है। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन क्या निकाल दी है 0, -1/√2 और 1/√2। अब यही क्वेश्चन में क्या हो सकता है बेटा, दो एंगल ना दे दे और तीसरा मिसिंग हो,
जैसे मान लेते हैं उसने दे दिया कि 60 डिग्री और 45 डिग्री लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, वाई के साथ कितना बनाएंगी वो बताओ, यानी बीटा एंगल मिसिंग है, ठीक है ना। तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम कहेंगे कि भाई हमें अल्फा पता है तो कॉस अल्फा निकाल सकते हैं हम, कॉस 60 यानी हाफ, गामा पता है तो कॉस गामा में निकाल सकते हैं 1/√2। अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा तो 1 होता है, तो मैंने ना यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हमें नहीं पता, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब 1/2 तो जाके माइनस होगा, तो 1/2 1 में से 1/2 गया तो 1/2 हो गया, 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 हो गया। अब कॉस स्क्वायर बीटा 1/4 आ रहा है, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस बीटा की वैल्यू 2 आएगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो ये दो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वो दो एंगल डिफरेंट बना सकती है, एक बना सकती है एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब 90 से छोटा, और हमें पता है फर्स्ट वन में अगर एंगल 90 से छोटा होता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आते हैं। इसका मतलब कॉस हाफ कब होगा, जब वो एक्यूट एंगल बनाएगी। तो हाफ कब होता है, कॉस की टेबल में हाफ कब आता है, 60 डिग्री पे, तो हम लिख देंगे एक्यूट एंगल जो आ रहा है वो 60 आ रहा है। बट अगर यहाँ पे ऑब्ट्यूज पूछा जाता, मतलब अगर एक्यूट पूछा हुआ है तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, और अगर ऑब्ट्यूज पूछा है तो पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, और कुछ नहीं पूछा है तो हम दोनों आंसर लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तीन अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही पार्ट के। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम क्या कहेंगे कि कॉस बीटा माइनस हाफ है। कॉस नेगेटिव कैसे निकाला हमने, कि बीटा को निकाला कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, जिसको हमने लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 3, है ना। क्योंकि कॉस जब नेगेटिव होता है तो उसको पाई में से माइनस कर देते हैं और उसको पॉजिटिव बना देते हैं, है ना। और हाफ आ गया हमारे पास 60 पे, तो 180 माइनस 60 120, यानी ये आपके दो एंगल बना रही है, एक 60 और एक 120। और मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, अपने आप ही पता चल जाएगा, एक थीटा एंगल बनता है, दूसरा पाई माइनस थीटा होता है। अब इसी के बेस पे एनसीईआरटी की 11.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक लाइन इक्वल एंगल बना रही है। इसको ऐसे भी आ सकता है कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है तीनों एक्सिस पे इक्वल एंगल बना रही है, तो डीसी बताओ। तो कहेंगे अगर इक्वल एंगल बना रही है तो अल्फा बीटा और गामा तो बराबर है। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दी, ये भी तीनों बराबर है। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी ये मेरे पास बन गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो 3 नीचे चला गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 हो गया, और जब मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर जाके रूट हो जाएगा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। तो क्योंकि सारे ही कॉस अल्फा पे, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ पे ना ये भी पूछा जा सकता है कैसे कितने पॉसिबिलिटी बन रही है, कितने पेयर्स बन रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ 8 ऑक्टेंट 8 बन रहे हैं, और बिकॉज वो 8 ऑक्टेंट्स होते हैं इसलिए 8 पॉसिबिलिटी बनती है ना। ये 8 पॉसिबिलिटी हुई ना, प्लस 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 माइनस, ऐसे 8 आंसर आ सकते हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो 8 ऑक्टेंट में कहीं भी लाइन हो सकती है, इक्वल एंगल बनाती है। अब चलते हैं अगले पे, कि भाई उसी क्वेश्चन का रिवर्स दे दिया मैंने कि अगर डायरेक्शन को साइन 1/√3 1/√3 1/√3 है तो शो करो ये इक्वल एंगल बना रही है। तो कहेंगे क्या प्रॉब्लम, बहुत इजी है, ये डायरेक्शन को साइन दे रखा है, इसका कॉस अल्फा है, तो अल्फा आ गया मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3, कॉस बीटा 1/√3 है तो बीटा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3, और कॉस गामा 1/√3 है तो गामा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। अब हम क्या देख रहे हैं कि तीनों बराबर है अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब ये लाइन इक्वल एंगल बना रही है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये डायरेक्टली छोटा सा क्वेश्चन था, 1 मार्क और 2 मार्क करना। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर डायरेक्शन रेशियो दे, मैंने अभी एक वेक्टर लेके समझाया था ना, अब यहाँ पे उसने डायरेक्शन रेशियो दे दिए, मतलब इसमें कहने का मतलब है एक तरह से ये ओपी वेक्टर ये है। ओपी वेक्टर कैसा होगा, 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये होगा वेक्टर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है इसके डीसी बताओ, तो हम कहेंगे डीआर तो हमें पता चल गए, और हमने अभी क्या पढ़ा था, डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो एंगल बताओ या डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो हमने बोला कि हमें तो डायरेक्शन रेशियोस पता है, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन रेशियोस को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो पहले लिखा डायरेक्शन रेशियो है 1 -2 और 2, इसकी लेंथ निकाल ली इसकी लेंथ आ गई 1, इस वेक्टर की लेंथ निकाली 144 यानी √9 यानी 3। तो इस डायरेक्शन रेशियो को
लेंथ यानी 3 से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया 1/3 माइनस 2/3 और 2/3। तो ये क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइन आ गए। तो हम कह देंगे भी डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास 1/3 माइनस 2/3 और 2/3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तभी इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर बेस स्ट्रांग होगी ना बच्चे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर लोगे। तो इसलिए हम बेस को स्ट्रांग कर रहे हैं। ठीक है, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। तो फिर से क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट एनसीईआरटी का ही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज को इस वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी, -18 का स्क्वायर 324, 144 और 16। जब इसको हमने सॉल्व किया तो यार 484। तो 484 का रूट हो जाता है 22। तो -18/22 को कट किया तो -9/11। 12/22 को कट किया तो आ गया 6/11। -4 को कट किया तो आ गया -2/11। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, -9/11, 6/11 और -2/11। तो एनसीईआरटी की जो 11.1 एक्सरसाइज है ना, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, तो आप इनको कर सकते हो इजीली। ठीक है बेटा, और बस खत्म करते हैं इसको, एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं फिर ये फटाफट फिनिश करते हैं। 11.1 एक्सरसाइज जो है बेसिक्स की थी, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और बाकी जो 2 क्वेश्चन बचते हैं वो इसी अप्रोच पे है जिसको हम इजीली फॉलो कर सकते हो बच्चे। ठीक है, तो पढ़ते हैं फटाफट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आपसे पूछ सकते हैं बताओ, या एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस बताओ, या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हमारे पास ये जो लाइन थी ना, ये जो लाइन थी ये लाइन ऐसे थी तो हम कहते थे इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब वो कह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस बताओ, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस खुद एक लाइन है। ठीक है, तो ये खुद लाइन है हमारी, तो हम कहेंगे ये लाइन एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही है, तो कहेंगे ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री बना रही है। अब ये लाइन वाई एक्सिस से कितना बना रही है, हम कहेंगे ये 90 बना रही है, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। और ये लाइन जेड एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, तो हम कहेंगे भाई ये 90 डिग्री बना रही है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस अपने साथ एंगल बनाता है 0, वाई के साथ 90 और जेड के साथ 90। तो इन एंगल के जो कॉस होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस 0, कॉस 90 और कॉस 90। और कॉस 0 होता है मेरा 1, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आ गए मेरे पास 1, 0 और 0। या आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो। अब पैटर्न अगर आप देखो तो क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के डीसी है 1, 0, 0। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस के डीसी पूछे होंगे तो क्या कहोगे आप, 0, 1, 0। और उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जेड एक्सिस के डीसी बताओ तो आप कहोगे 0, 0, 1। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। वाई एक्सिस की बात करेंगे तो लाइन वाई एक्सिस को अलोंग पढ़िए, तो एक्स एक्सिस का 90 बनाएगी, अपने साथ 0 डिग्री बनाएगी, है ना। अल्फा 90 हो जाएगा, बीटा 0, गामा 90। तो इन एंगल के जो कॉस निकालोगे तो आ जाएंगे कॉस 90, कॉस 0, कॉस 90, यानी डीसी हमारे पास आ जाएंगे 0, 1, 0। और इसी तरह से हम जेड एक्सिस की भी बात कर सकते हैं। तो जेड एक्सिस की बात करेंगे तो लाइन जेड एक्सिस के लॉन्ग पड़ी हुई है, लाइन ऐसे ऐसे डायरेक्ट लाइन। तो ये एंगल कितना बनाएगी, इसके साथ 90, यहाँ 90 और इसके साथ 0। तो cos 90, cos 90 और cos 0, तो हमारे पास डीसी आ जाएंगे 0, 0 और 1। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अपने बेसिक्स जो हमने पढ़े थे, हमने इसको कंसेप्ट को 11 से भी रिलेट कर दिया, और 12 के बेसिक क्वेश्चन भी ध्यान से हमने कर लिए। तो अपने फीडबैक शेयर करिए, इवन चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, तो ठीक है। और नहीं तो आप हमें इसके अपना मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो क्विज है उसका जो लिंक है हम शेयर कर रहे हैं कि आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके बेस पे आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए और देखिएगा आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है और कितना आप समझ पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, और अपने फीडबैक हमें देते रहिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं, और हम इकट्ठे बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और अपनी जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, भेजिए। और अगर कुछ समझना है तो वीडियो को दोबारा एक बार देखिएगा बच्चे, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच।